بلا تاخیر گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا محمد شکر صاحب سے کہ آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں. ایک نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. بزرگان محترم، معزز سامعین، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ وہ آیت ہے جسے شہزادی نے باغ فدق کے قضیے اور مسئلے میں اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پیش کی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وراثت کے مسئلے میں علماء اہل سنت نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں. جبکہ وراثت کا معاملہ یہ ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے تفسیریں لکھی کہ ووارث سلیمان و داؤد، تو انہوں نے لکھا کہ سلیمان کو نبوت اور علم وراثت میں ملا تھا. جبکہ آپ یہ دیکھیں علم اور وراثت، علم اور نبوت یہ وراثت میں نہیں ملتی ہے، یہ منصب الہی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے، کس چیز بنے؟ سوال یہ ہے کیا سلیمان جو ہے وہ داؤد کے کس چیز کے وارث بنے؟ جب ہم نے تفسیریں پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں سلیمان علم اور نبوت کے وارث بنے، مال کے نہیں. چونکہ کچھ قزاقوں کی قزاقی کو درست ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ تفسیریں بیان کی کہ سلیمان داؤد کے نبوت اور علم کے وارث بنے ہیں، حکومت اور مال کے وارث نہیں. لیکن جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے سلیمان کو داؤد کی زندگی میں ہی علم عطا کر دیا گیا تھا. اگر اس سے پہلے والی آیت، حالانکہ اسی آیت میں علمنا منطق الطیر، اگر اس جملے پہ غور کرتے کہ ان کو منطق الطیر کا علم دیا جا چکا تھا، وراثت میں نہیں ملا. داؤد کو علم منطق الطیر نہیں آتا تھا، سلیمان کو آتا تھا اور اللہ نے دیا تھا، تو علم میراث نہیں ہے. اور اس سے پہلے والی آیت اگر آپ دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، خداوند عالم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ان دونوں نے شکریہ بھی ادا کیا، تعریفیں بھی کی پروردگار کی کہ وہ اس اللہ کی ساری تعریفیں جس نے ہمیں بندوں میں سے اکثر پر فضیلت دی. اور اگر آپ سورہ انبیاء کی 79ویں آیت دیکھیں گے تو پھر اس میں بھی ارشاد ہوتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا. ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے علم اور حکمت عطا کی. 80 آیت میں بھی اسی سورہ انبیاء کی ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. ہم نے زیرہ بنانے کا علم داؤد کو عطا کیا، جو کہ ان کے پہلے ان کے والد صاحب کو نہیں عطا ہوا تھا. تو علم میراث نہیں ہے، نبوت میراث نہیں ہے، بلکہ مال میراث میں آتا ہے. داؤد کی زندگی ہی میں جناب سلیمان کو علم عطا ہو گیا تھا، اور وراثت باپ کے مرنے کے بعد اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہے. ہمارا موقف اس معاملے میں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سلیمان مال و حکومت کے وارث بنے تھے، نہ کہ علم کے، کیونکہ باپ کی وفات کے بعد اس کا مال اولاد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، نہ کہ اس کا علم. علم و نبوت میں ایسا نہیں ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اولاد کی طرف منتقل ہو جائے. اگر ایسا ہوتا، اگر نبوت اور علم باپ کا اولاد کو میراث سے ملتا تو جناب یعقوب کے سارے بیٹے نبی ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. منصب اسے ہی ملا جو اللہ کی طرف سے منتخب تھا، سارے کے ساروں کو نہیں ملا. تو اور ہمارے اور اسماعیلی شیعوں کے درمیان بھی یہی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے بیٹے جناب اسماعیل تھے، جناب جعفر صادق علیہ السلام کے.
जबकि मनसब इमामत उलूही मनसब है, और इसीलिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को मिला, ना कि जनाब इस्माइल को। हमारे और इस्माइल शिया के दरमियान ये इख्तिलाफ है। और आप अगर इल्म में देखें तो किसी आलिम के सारे बेटे आलिम नहीं होते, जाहिल भी होते हैं, और आपके मुशाहिदे में भी हैं, बहुत सारे हैं। तो नबूवत और इल्म ये मीरास नहीं है। हालांकि अगर बेटा नबी हो जाए तो मजाजन कहा जाएगा कि नबी का वारिस है, मजाजन, जैसे इन्नल उलमा या वरसतुल अंबिया, जैसे उलमा अंबिया के वारिस हैं, मजाजन वारिस हैं। तो माल का मुअज़्ज़ज़ सामिनीन वारिस जो सुलेमान बने हैं वो दाऊद के हकीकतन वो माल के वारिस हैं, ना कि इल्म और नबूवत के। आइए अब क़ज़िया फ़दक की तरह आपको लेके चलता हूँ, जिसमें बीबी ज़हरा ने अपनी विरासत साबित भी की है, और हमारे उलमा ने ज़माने से जब से ये मसला पेश आया अब तक साबित करते आ रहे हैं। आयत आई जब वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल हुई कि अपने अक़रबा को तंबीह करें, तो इस आयत के तहत ख़ुसूसी तौर पर वाजिब है कि अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए हलाल और हराम बयान करे पैगंबर। तो क्या रसूल ने अपनी साहबजादी को नहीं बताया कि आपको मेरी मीरास नहीं मिलेगी, जबकि लोगों को हलाल हराम बताते रहे कि फ़ातिमा तो बदा तुम मिन्नी, मेरी बेटी मेरा टुकड़ा है, जिसने इसको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने इसको ग़ज़बनाक किया उसने मुझे ग़ज़बनाक किया। क्या रसूल ने यह हुक्म अपनी औलाद तक नहीं पहुँचाया, या यह कि हज़रत सैयदा ने अपने बाबा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की मीरास का मुतालबा किया? आप इन दोनों बातों में से किस बात को अख्तियार करेंगे? दोनों में से जो भी बात अख्तियार करेंगे आपका ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए कि रसूल अपनी बेटी को हलाल और हराम के मुतालिक ख़बर देकर न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और शहज़ादी अपने बाबा की मना की हुई बात का मुतालबा करें दरबार में जाके, ऐसा भी नहीं हो सकता। दोनों बातों में से जिसे भी अख्तियार करेंगे आपका ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए इस मसले में भी हमारा मौक़िफ़ वही है जो कुरान का है कि ऐसा कोई हुक्म था ही नहीं, बल्कि कुरान की रूह से अंबिया की औलाद अपने जदो आबा की वारिस बनती हैं, जैसा कि वरसा सुलेमान और दाऊद। अलबत्ता आपसे हमारा सवाल ज़रूर है, आप अपना मौक़िफ़ इस हदीस के मुतालिक ज़रूर वाज़ेह करें कि ला नूरसो मा तरकनाहु सदक़ा। इस हदीस के बारे में हम आपसे सवाल करते हैं कि आपका मौक़िफ़ क्या है, आप क्या अख्तियार करते हैं कि जो चीज़ हम बतौर सदका छोड़ जाते हैं उसमें हम किसी को वारिस नहीं बनाते। ये हमारा मौक़िफ़ है, ना कि ये जो छोड़ जाए वो सदका है। जो हम सदका छोड़ते हैं उसमें किसी को वारिस नहीं बनाते, सारी की सारी चीज़ें सदका नहीं छोड़ते। और ख़ुद खलीफा अव्वल ने इस हदीस के ख़िलाफ़ जाकर के अमल किया। वो अमल कब था? जब वो वाक़या है जब जनाब अब्बास ने मौला अली से कहा कि भाई ऐसा है, चूँकि भतीजे थे इसलिए कहा कि रसूल की विरासत में जो घोड़ा तलवार और अमामा था उसे मेरा भी हक़ है। और ये क़ज़िया दरबार खिलाफत में पहुँचा तो हज़रत अली के हक़ में फ़ैसला दिया गया कि भाई रसूल की इन चीज़ों पर अली का हक़ है, ना कि अब्बास का। और अली को वो चीज़ें दी गई। अगर रसूल की ये मीरास अली को दी गई तो फिर बीबी ज़हरा को फ़िदा क्यों न दिया गया? सवाल ये है कि जब अली को ये सारी चीज़ें दी गई मीरास में तो फिर बीबी ज़हरा को फ़िदा क्यों न दिया गया? इसका मतलब ये है कि जो अपनी जाली करदा हदीस इन्होंने बयान की थी उस हदीस के ख़िलाफ़ ये लोग गए। और दूसरा मसला, ख़ुद जब खैबर की जायदाद रसूल के बाद खलीफा तव्वुम तकसीम कर रहे थे, खलीफा तव्वुम भी इस हदीस के ख़िलाफ़ गए हैं, अमल किया उन्होंने। तो साहब कहते हैं कि अज़वाज की महर का हक़ था वो हमने अदा कर दिया, जबकि कुरान में सराहत के साथ बयान हुआ है अज़वाज का महर रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में अदा कर दिया था। सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजकल लती आतैता उजूरहुन्ना, ऐ नबी हमने आपके लिए आपकी वो बीवियाँ हलाल की हैं जिनके महर आपने दे दिए थे। इस जगह पे इब्न अबील हदीद मुअतज़िली ने नहजुल बलागा की शरह में हज़रत अली के इस फरमान के ज़ैल में बयान किया है कानत फ़ी ऐदीना फ़िदक। इस
जुमले के ज़हन में लिखा है कि मैंने अली इब्न फारूकी जो मदरसतुल गरबिया बगदाद के मुदर्रिस थे, उनसे पूछा क्या फ़ातिमा सच्ची थी? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा तो फिर अबू बकर ने फ़दक उनको क्यों न दिया? मुस्कुरा कर कहा कि अगर आज फ़दक दे देते तो कल जनाब मखदूम आलम अपने शौहर की खिलाफत का दावा करती, तो अबू बकर को उनके मकाम से हटना पड़ जाता, इसलिए उन्होंने फ़दक नहीं दिया। अबिल हदीद मुतज़िली कहते हैं बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, अगरचे उसे बतौर मजाक कहा गया। सामईन हज़रात, ये सारी क़ज़्ज़ाक़ी एक विलायत और खिलाफत को ग़स्ब करने के लिए की गई थी, चूँकि सबसे पहला हमला खिलाफत पर ही हुआ था, उसके बाद फ़दक को ग़स्ब किया गया, इसलिए। और जिसकी कीमत आज तक शियाने अली अदा कर रहे हैं, चाहे वो हज़ारा कम्युनिटी के साथ बरसा बरस से होता आया हो, या दीवारों पे शिया काफिर के जुमले लिखे जा रहे हों, या शियों को कुफ्र के फतवे लगाकर कत्ल किया जाता रहा। सबसे पहली शहीद विलायत के दिफा में सबसे पहली शहीद होने वाली खातून सैयद आलम है। और इस बीबी के इतने फ़ज़ाइल रसूल ने अपने उम्मत के सामने बयान किए, फिर भी रसूल की आँख बंद होती ही उम्मत उनके घर पर आग और लकड़ियाँ लेकर जमा हो गई। फ़क़त वस्सलाम वालेकुम।